ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਸਾਡੇ ਅਲਜਬਰਾ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ। ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For every two elements of Z, suppose integers, ਅਸੀਂ a plus b ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ a into b, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਟੁਗੈਦਰ ਵਿਦ ਏ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਓਮਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ G together with the binary operation star defined on it, then the algebraic structure G star is called a group if it satisfies the following assumption: A star B belongs to G for every element AB of G। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन करने तो बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट होएगा दैट मस्ट बिलोंग टू G फॉर एवरी एलिमेंट AB ऑफ G। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एक्सियोम है A स्टार B स्टार C, यानी कि एसोसिएट प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन G। थर्ड एक्सियोम की है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G देयर exists an element in G which is known as identity element such that E star A is equal to A star E for every element A of G. This E is called the identity element of G with respect to binary operation star. Next जी axiom है fourth axiom, for all A and B element of G, sorry, all A there exists a B element in G such that A star B is equal to identity element or B star A is equal to identity element। ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ B A ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ A is called inverse of B and B is called inverse of A। ਤਾਂ every element of G has inverse in it। ਤਾਂ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ੀਓਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ: ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਡਾਟ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ। ਗਰੁੱਪਸ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਟ ਅਤੇ ਇਨਫਾਈਨਟ ਗਰੁੱਪਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਈਨਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨਫਾਈਨਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਾਈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा square, this set is an example of finite set।
or finite group. Set of integer, set of rational number, set of real number, set of complex number is a examples of infinite groups. Group ਦਾ order ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Group ਦਾ order ਕੀ ਹੈ? Group ਦਾ order ਕੀ ਹੈ? Order means number of elements in G. Order ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ O of G ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ n ਨੇ, ਦੈਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਫਾਰ ਐਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਬੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਨॉन ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਐਗਜ਼ੀਓਮ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ, ਥਰਡ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, फोर्थ सी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलीमेंट ऑफ ग्रुप। नैक्सट ग्रुप अवेलन कदों होएगा जेकर साडे कोल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते होन फॉर एवरी एलीमेंट ए बी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल ए बी एलीमेंट्स ऑफ जी, दैन वी सी दैट ग्रुप इज अवेलन ग्रुप। अदरवाइज जे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, शो नहीं करते एलीमेंट्स, तो एक ही होएगा नॉन अवेलियन ग्रुप। नैक्सट है ग्रुपाइड ग्रुप, सैमी ग्रुप्स, मोनाइड्स। ग्रुपाइड की है एक नॉन एम्प्टी सैट जी टुगैदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसनूं असीं ग्रुपाइड कहांगे जेकर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती होवे। ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी एलीमेंट्स ऑफ जी। सैमी ग्रुप की होएगा एक नॉन एम्प्टी सैट जी नूं असीं सैमी ग्रुप कहांगे फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट सैटिस्फाइज 2 एक्सियोम्स, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। मोनाइड की है ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट इज कॉल्ड मोनाइड। इसनूं मोनाइड कहांगे इफ इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियोम्स। साडा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलीमेंट। ये साडा आइडेंटिटी एलीमेंट है। हुण असीं कुछ एग्जांपल्स लैने आ। फॉर एग्जांपल सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स। एक सैमी ग्रुप होएगा अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन। सैट ऑफ नैचुरल नंबर साडा n है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्योंकि असीं एडिशन ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो किसी भी दो नैचुरल नंबर का सम नैचुरल नंबर ही होएगा। इट मीनस दिस बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज अंडर दिस सेट ऑफ नैचुरल नंबर इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है। एसोसिएटिव लॉ, इफ वी टेक एनी 3 नैचुरल नंबर n, p एंड q, n plus m plus p will be equal to n plus m plus p। m plus p क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ते एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, इट मीनस n इज ए सैमी ग्रुप अंडर एडिशन। ये मोनाइड नहीं है क्योंकि मोनाइड दे विच की हुंदा है क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाल नाल आइडेंटिटी एलीमेंट भी होना जरूरी है, क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलीमेंट की है 0 एलीमेंट, क्योंकि फॉर एवरी n नेचुरल नंबर n plus 0 is equal to n plus 0 is equal to n।
n। तो जीरो एलीमेंट एक्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट, बट नैचुरल नंबर दे विच आइडेंटिटी जीरो बिलोंग नहीं करता नैचुरल नंबर में, इस करके जिहड़ा n है सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज नॉट ए मोनाइड, इट इज सिंपली ए सैमी ग्रुप। नैक्सट है साढ़े को एक सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इस एलिमेंट है कि एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, एक सैमी ग्रुप होएगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सपोज असी दो एलीमेंट लेने सैट दे ए ते बी, जिस दे एलीमेंट है कि x1 y1 x2 y2 एंड x2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ x1 ਆਏਗਾ, x1 y1 be suppose any two elements of G such that x1 plus y1 is not equal to 0 and x2 plus y2 is not equal to 0। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ प्रोडक्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ that is not equal to 0। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 0 ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ given that x plus y is not equal to 0। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਤੇ b ਨੂੰ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। क्योंकि साड़ी डेफिनेशन की सीगा कि एक्स वाई जो साडा एलीमेंट है जी दा, इस दे विच एक्स प्लस वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस दे विच भी ये साडा जिहड़ा एक्स प्लस वाई है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। असीं दोवां नूं ऐड करिए साडे कोल ये आएगा, बट क्योंकि साडे कोल असीं प्रोडक्ट कीता सी पहलां दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 सीगा? क्योंकि एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, x2 प्लस y2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस करके 0 नहीं है, इस करके ये भी 0 नहीं होएगा। इट मीनस साडा जो ए एलिमेंट है ए बी दैट आल्सो बिलोंग्स टू जी। इट मीन जी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन असीं लोअर क्लासेस पढ़ा सीगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी आल्सो। इट मीन जी इज ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। असी ये भी चेक कर सकते हैं कि दिस इज नॉट ए मोनाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मोनाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ई साडा इस तरह का एलीमेंट है विच एक्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट, तो आइडेंटिटी एलीमेंट है दैन ए ई मस्ट बी इक्वल टू ए एंड ई ए मस्ट बी इक्वल टू ए फॉर एवरी ए एक्स वाई ऑफ टाइप ऑफ एलीमेंट ऑफ जी। अस चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलीमेंट है कि नहीं। तो की होना चाहिए एक्स वाई दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स वाई। असी मल्टीप्लाई करिए एक्स ए वाई ए एक्स बी प्लस वाई बी एक्स ए प्लस वाई ए एक्स बी प्लस वाई बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एक्स वाई। तो असी दोनों क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स ने, असी दोनों कोरसपोंडिंग एलीमेंट नूं इक्वेट करिए तो साडे कोल की आ रहा है ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, तो बी की वैल्यू आ रही है वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। असी इस तो बाद इन्हां दोनों लिए तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इस तो साडे कोल की आ रहा है ए प्लस बी माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। असी इन्हां नूं ऐड करिए साडे कोल की आएगा ए प्लस बी माइनस 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बट एक्स प्लस वाई तो 0 नहीं है क्योंकि गिवन है। इट मीनस ए प्लस बी माइनस 1 0 होएगा, ए प्लस बी की वैल्यू की आएगी 1। ए प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी तो ए ते बी जिहड़ा है वो क्योंकि कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, इट मीनस साडा जिहड़ा ई है ई जिहड़ा है साडा वो यूनीक नहीं होएगा। ए ते बी दियां बहुत सारिया वैल्यूज हो सकदियां ने जिन्हां दा सम इक्वल टू की होएगा 1 होएगा, इस करके ई साडा यूनीक नहीं है।
क्योंकि किसी भी ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਮੋਨਾਇਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ m into 1 is equal to m is equal to 1 into m for every, and it means ਸਾਡਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਨਾਇਡ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟ ਹੈ, ਨॉन एम्प्टी सेट है px। px की है पावर सेट, पावर सेट ऑफ सेट x। तो असी शो करना है कि पावर सेट ऑफ x एक मोनाइड है अंडर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, आल्सो ए मोनाइड अंडर द ऑपरेशन यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। क्लोजर प्रॉपर्टी सानू पता है कि किसी भी, क्योंकि पावर सेट दे विच की हुंदा है सबसैट्स ऑफ सेट x होणगे, इस करके किसी भी दो सबसैट का असी यूनियन करांगे या इंटरसैक्शन करांगे तो वह px ਨੂੰ ही बिलोंग करेगा। इस करके क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 3 एलीमेंट ले लो px दे, क्योंकि तीनों जो एलीमेंट होंगे वो इस x दे सबसैट होंगे, इस करके इन्हां दा इंटरसैक्शन भी जिहड़ा है वो इक्वल होया, क्योंकि इंटरसैक्शन आप पढ़िया होया एसोसीएटिव हुंदा है सैट्स। तो एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है आइडेंटिटी एलीमेंट। आइडेंटिटी एलीमेंट की है, असी एक्स नू आइडेंटिटी एलीमेंट, क्योंकि एक्स पी एक्स नू बिलोंग करता है, आइडेंटिटी एलीमेंट लेने जेकर एक्स नाल असी किसी भी जिहड़ा है सैट ए दा असी इंटरसैक्शन लवांगे तो ए ही आएगा, क्योंकि ए इज द बिगेस्ट यानी कि इस पी एक्स के लिए या यूनीवर्सल सैट होएगा। तो ए इंटरसैक्शन एक्स विल बी इक्वल टू ए, तो एक्स साडा आइडेंटिटी एलीमेंट है। इट मीनस पी एक्स अंडर इंटरसैक्शन एक मोनाइड है। सिमिलरली साडे कोल यूनियन वास्ते तुसीं दे सकते हो, ये साडा एक मोनाइड होएगा। हुण साडे कोल बहुत सिंपल जिहा सैट है जिस दे विच दो ही एलीमेंट है -1 ते 1। यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के अंडर एक अबेलियन ग्रुप है। हुण असीं देखते हैं पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि यूजुअल मल्टीप्लीकेशन करते हैं आप 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करके 1 आएगा विच बिलोंग्स टू एस। 1 -1 मल्टीप्लाई करिए तो -1 आएगा विच आल्सो बिलोंग्स टू एस। -1 into 1 करिए विच इज इक्वल टू -1 आल्सो बिलोंग्स टू एस, एंड -1 into -1 करिए इज इक्वल टू 1 होएगा। तो किसी भी दो एलीमेंट्स का असी प्रोडक्ट करते हाँ तो एस नू ही बिलोंग करता है। इट मीनस दिस जिहड़ा है ग्रुप इज क्लोज्ड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हुंदी है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। असीं इहदे विच ए बी पहला प्रोडक्ट लैने, उस तो बाद सी दा लैने, उस तो बाद इस विच की करदे हां असीं ए ते सी नूं असीं पहला मल्टीप्लाई करदे हां, बाद विच ए नाल मल्टीप्लाई करदे हां, क्योंकि ये साडा जो सैट है इहदे विच -1 ते 1 इंटीजर ने, तो एसोसिएटिव ला जिहड़ा है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए इंटीजर वास्ते होल्ड करता है, इस करके इस सैट के लिए भी करेगा। आइडेंटिटी एलीमेंट 1 साडा एक्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट, क्योंकि इस सैट के -1 ते 1 दो ही एलीमेंट ने, तो 1 एक्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट। 1 into 1 1 होएगा, -1 into 1 1 होएगा। इट मीनस 1 एक्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट फॉर दिस नॉन एम्प्टी सैट। इनवर्स, इनवर्स की हुंदा है ए इंटू ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, तो बी इज नोन एज आइडेंटिटी एलीमेंट। साढ़े को आइडेंटिटी एलीमेंट 1 है, तो 1.1 इज इक्वल टू 1 आर, इट मीनस 1 का इनवर्स 1 होएगा। सिमिलरली -1 का इनवर्स की होएगा -1 होएगा, तो 1 का इनवर्स 1 है, तो दैट ऑफ -1 का की है -1। इट मीनस एवरी एलीमेंट ऑफ एस हैज़ इनवर्स।
ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਓਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਇੰਟੂ 1 ਵੀ -1 ਆਏਗਾ ਅਤੇ 1 ਇੰਟੂ -1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ -1 ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। 0 ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, 0 ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟ Z ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਆਲਸੋ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, A plus B is equal to B plus A। ਇਟ ਮੀਨਸ Z is an abelian group under addition। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਥੀਸ ਟੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स आल पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नैगेटिव इंटीजर ਨੂੰ ਅਸੀਂ आल पॉजिटिव इंटीजर नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन नैगेटिव इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। ये है साडा सैट ऑफ आल नॉन नैगेटिव इंटीजर। तो साडा जिहड़ा ऑपरेशन है वो है एडिशन। तो क्योंकि किसी भी दो नॉन नैगेटिव इंटीजर का जो सम है वो एक इंटीजर नॉन नैगेटिव इंटीजर ही आएगा। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, एसोसिएट ला होल्ड करेगा, क्योंकि इंटीजर वास्ते नॉन नैगेटिव इंटीजर वास्ते होल्ड करता है, क्योंकि 0 बिलोंग करता है। क्योंकि नॉन नैगेटिव की गल कर रहे हैं दैट मीनस 0 इंक्लूडिड है इस सैट दे विच। तो 0 साडा एक्ट्स एज आइडेंटिटी एलीमेंट, क्योंकि असी सारे नॉन नैगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो साडे कोल A plus B इज इक्वल टू 0 होएगा, तो B विल बी इक्वल टू -A विच इज़ ए नैगेटिव। नैगेटिव साडे इस सैट Z डैश नू बिलोंग नहीं करता, क्योंकि साडा जिहड़ा Z डैश सैट है दैट इज़ ए सैट ऑफ नॉन नैगेटिव इंटीजर, मीनस नैगेटिव नहीं हैगी। इट मीनस B इज़ नैगेटिव, तो B इस नू बिलोंग नहीं करेगा। इट मीनस इस सैट डैश Z डैश के लिए किसी भी एलीमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीनस Z डैश जिहड़े कि सैट ऑफ नॉन नैगेटिव इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। Q स्टार ये की है, सैट ऑफ आल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी कि 0 नू असी एक्सक्लूड कर दिए, बाकी सारे रैशनल नंबर्स। एक अबेलियन ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सपोज साडे कोल दो ऐसे रैशनल नंबर A एंड B लैने असी, इस Q स्टार नू बिलोंग करते हैं, तो नैचुरली दो रैशनल नंबर का जिहड़ा प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर ही होएगा। सिमिलरली एसोसिएट ला भी होल्ड करता है। 1 साडा आइडेंटिटी एलीमेंट जो एक्ट करेगा, क्योंकि 1 इंटू एनी रैशनल नंबर इज इक्वल टू दैट रैशनल नंबर आएगा। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स, क्योंकि A इंटू 1/A इज इक्वल टू साडा जिहड़ा आइडेंटिटी एलीमेंट है 1 हैगा, तो 1/A है साडा A दा इनवर्स। क्योंकि रैशनल नंबर है A, तो 1/A भी रैशनल नंबर होएगा। क्योंकि 0 एक्सक्लूडेड है, इस करके A कदे भी 0 नहीं होएगा, इस करके 1/A
is always defined, and 1 by a always belongs to q in q star. It means q star is a group. Similarly ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ q star is a Nabelian group. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ C, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ Z1 Z2, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ also belongs to C, क्योंकि this is of the form x plus iota y। इस वर्गा कोई भी नंबर जोड़ा है वो कंपलैक्स नंबर होएगा। a plus c साडा रियल है, b plus d is also real, तो c is closed under addition। सिमिलरली तीन कंपलैक्स नंबर लईए z1 z2 एंड z3 भी यानी सी कंपलैक्स नंबर, तो ऐड करने से साडे कोल की आएगा प्लस z1 z2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ हैं, उस तो बाद प्लस ई प्लस आयोटा एफ, इसनू ऐड करने तो बाद साडे कोल क्योंकि जिहड़े साडे रियल नंबर ने उन्हां दे लई जिहड़ा एसोसिएट ला होल्ड करदा है, तां ए प्लस आयोटा बी नू सिलेक्ट कर सकते हैं, सी प्लस ई प्लस आयोटा डी प्लस एफ, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। दिस विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एसोसिएट ला होल्ड करता है, जिहड़ा जीरो कंपलैक्स नंबर है साडा आइडेंटिटी एलीमेंट विच एक्ट करेगा, तो हर एक कंपलैक्स नंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि साडा ऑपरेशन जिहड़ा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन है, तो हर एक कंपलैक्स का नैगेटिव जिहड़ा होएगा उसका इनवर्स होएगा, क्योंकि Z प्लस Z माइनस Z विल बी इक्वल टू जीरो कंपलैक्स नंबर। उस तो बाद जी एडिशन है वो कम्यूटेटिव है कंपलैक्स नंबर की, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इट मीनस सेट ऑफ कंपलैक्स नंबर इज ए अबेलियन ग्रुप। चलो बेटा अज तुसीं इन्ना करना है, नैक्सट असीं करांगे ग्रुप कंटिन्यू करांगे। थैंक यू।